A very good morning to all my dear students. Today we are just going to continue our previous video from the lesson A House is Not a Home. So in the previous video we had just got to learn that how our author's house has just broke out in a fire, and they've just lost each and everything in the fire break. And at this point, the most remorseful for our author was just because of the suffering. He had just lost his cat, his home, and there is a new school even. So all these circumstances and situation just altogether just horrifying our author. So here, um when he was just trying to go back into his house, so due to some danger, many of the person has just stopped him to went towards his house. So they have to made their way towards their grandparents' house to spend the night. But on the next day, Monday, they have to went school. When the fire broke, I was still wearing the dress I had worn church that morning. Now, here we come to know that our author has just worn out that particular dress which he has just worn out in the morning, which he has just worn to move towards the church. एंड आई हैड नो शूज़, उनके पास कोई शूज़ नहीं थे बिकॉज घर पे जब भी कोई आप जाते हो ऑब्वियसली यू आर kick them off, or you can say generally you will be at the comfortable level in your home. So I had kicked them off when I was doing my homework. So मैं homework करते हुए मैंने अपने जूतों को निकाल दिया था. They become yet another casualty of the fire. वो भी शायद फायर जो हमारे यहाँ फायर लगी थी उसकी भेंट चढ़ गए हैं. राइट, यहाँ भेंट चढ़ने का मतलब क्या है कि वो भी उसमें डैमेज हो गए हैं. So here I had to borrow some tennis shoes from my aunt. One of the aunt of our narrator has just given up some of the tennis shoes of his son, so that our author, you can say, might go to school. Why couldn't I just stay home from school? यहाँ पर author जो है वो इतने छोटे हैं, वो पूछते अपनी मम्मा से why he cannot be stay at home. My mother would not hear it. मेरी मम्मा ने इसको सुना नहीं. But I was totally embraced by everything. और बट मैं हर एक चीज़ से क्या हो चुका था, चीज़ों से मैं काफ़ी हद तक इम्प्रेस हो चुका था. द क्लोथ आई वॉज वेयरिंग लुकिंग वर्ड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि मेरे क्लोथ जो मैंने पहने हुए थे वो काफ़ी वियर्ड लग रहे थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास कोई होमवर्क या बुक्स नहीं थी. एंड माई बैकपैक वॉज गॉन, और मेरी बैकपैक जो थी वो भी नहीं बचा था. एंड एनी बुक्स वगैरह सब कुछ जल के खाक हो चुका था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. सिर्फ मेरे उसमें पुस्तकें और सारी चीज़ें, बुक्स ही नहीं थी बल्कि मेरी लाइफ ही थी उसमें पूरी. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्ड्स इट गॉड, जितना मैं इस सिचुएशन में हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही ये वर्ड्स होती जा रही है. वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माई लाइफ, क्या मैं ऐसे ही आउटकास्ट रहूँगा? क्या मेरी किस्मत में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था? क्यों लिखा हुआ था? दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक. ये बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं फील कर रहा हूँ. I did not want to grow up, changes or have to handle life if it was going to this way. तो मैं जल्दी से बड़ा नहीं होना चाहता हूँ. इतनी जल्दी चेंजेस जो मेरी लाइफ में आ रहे हैं, इतने ज़्यादा चेंजेस की मैंने कभी भी इंतज़ार नहीं किया था, कभी उम्मीद नहीं की थी. अगर ऐसा ही चलता रहा देन आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, तो मैं जल्दी से मर जाना चाहूँगा अगर इतने जल्दी चेंजेस ऐसे आते रहे तो. इस पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि हमारे ऑथर की जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी चेंज हो रही है, और ड्यू टू सम ऑफ द रीज़न आवर ऑथर इज जस्ट ट्राइंग टू, यू कैन से, tackle with the problems. But after all, he is a small child, not a grown up man, so he just trying his best to get out of this way. But in the end he will just say that he cannot handle this. If a life will be held to be this way, then he will want it to curl up and die. Now I walk around school like a zombie. Everything felt surreal, and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known
from my old school, my friend, my house, and my cat had been ripped away. Now, our author has to say that यहाँ zombie means होता है एक ऐसा मरा हुआ व्यक्ति जिसके अंदर जो चल सकता है, आपने कभी देखा भी होगा, इज ए घोस्ट लाइक फिगर। सो ये कहते हैं कि ज़ोंबी की तरह मैं चल रहा था, बिकॉज मेरे गंदी सी ड्रेस हो चुकी थी, एक टेनिस शूज़ पहने हुए थे, नथिंग टू डू लाइक विद द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्कूल। मैं फिर भी स्कूल गया, एवरीथिंग फेल्ट सुरल, हर एक चीज़ काफ़ी हद तक मुझे चुभ रही थी। आई वॉज श्योर, मैं इस बात आई वॉज श्योर, मैं इस बात के लिए यकीन, मतलब मुझे कोई श्योरिटी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी जिसे मैं जानता था, जैसे मेरा स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, मेरा घर, मेरी कैट, सब के सब क्या हो चुके हैं, रिप्ड अवे, दैट मीन्स दे हैव जस्ट गॉन अवे, वो सब जा चुके हैं। When I walked through what used to be my house after school that day, जो मेरा घर होता था, मैं अपने स्कूल के बाद उसके मतलब वहाँ गया। I was shocked to see how much damage there was. मैंने बहुत मतलब गहराई से देखा कितना ज़्यादा डैमेज हुआ था, मैं शॉक रह गया। Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out of the water. जो भी कुछ बचा हुआ था, वो कुछ वाटर जो हमने उस पर किया था, उसकी वजह से जो बचा हुआ था जलने के बाद भी, वो केमिकल्स और वाटर ने बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। द ओनली मेटल थिंग नॉट डिस्ट्रॉय वर द फोटो एल्बम, documents and some other personal item that my mother had managed to heroically rescue. कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बची हुई थी, वो थी डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो एल्बम और हीरोइकली रेस्क्यू जो मेरी मम्मा ने किया था। हीरोइक रेस्क्यू का मतलब जो बचाना था, हीरो की तरह जो उसकी मम्मा ने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बचाए थे, उसके अलावा कुछ भी चीज़ें नहीं बची हुई थी। बट माई कैट वॉज गॉन, माई हार्ट एस्ट फॉर हर, यहाँ कहते हैं, लेकिन मेरी कैट तो फिर भी चली गई, वो भी मेरी मम्मा नहीं बचा पाई, उसके लिए मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं इस चीज़ के लिए दुख मनाऊँ। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मुझे मेरे मम्मा ने घर से बाहर निकाल दिया। वी हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। वो कहती हैं कि यहाँ पर कुछ हमें एक नई जगह ढूंढनी पड़ेगी रहने के लिए, एंड मुझे सब कुछ क्लॉथ्स जो हैं घर के लिए चाहिए, और स्पेशली आपके स्कूल के लिए तो बिल्कुल चाहिए। तो वो वहाँ पर क्या करने जाते हैं, अपनी थोड़ी ख़रीदारी करने जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बर्न आउट इन द फायर, राइट। सो उसकी स्कूल ड्रेस भी बहुत ज़रूरी है। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, हमें अपने दादा दादियों से पैसे जो थे उधार लेने पड़े, बिकॉज देर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, उस टाइम पे कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे हम कोई आइडेंटिफिकेशन हो जिससे हम विड्रॉ कर ले अपना मनी बैंक से, राइट। सो एवरीथिंग हैड जस्ट गोन अप इन द स्मोक, क्योंकि हर एक चीज़ जो थी वो धुएं में जा चुकी थी। द वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ अ लॉट, उसी वीक हमारा जो घर था वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, हमने उसकी साफ सफाई भी की, करवाई, उसके जितने भी जो भी हमें जला हुआ मिला हमने उसको भी अंडर गार्बेज कर दिया, राइट। तो उसके बाद हमने हर एक चीज़ क्लियर कराई। उसके बाद भी हमने एक रेंटेड लिया, एक अपार्टमेंट लिया, एक घर लिया नियर बाई जो बिल्कुल नज़दीक था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियरली अवे डेब्रिस एंड होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। अब मैं हमेशा उसके आसपास जाता रहता कि उसके कोई जो भी जितने भी क्या ना वो नीचे काटी थी मनी आड़े बेड पे, इस पे बैठ। देन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने कैट को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन वो चाहता है कि उस सारे जले हुए ढेर में कहीं ना कहीं वो क्या कर ले, अपनी कैट को पालेगा। शी वॉज गॉन, आई थिंक वो सोच लेता है कि भाई हर एक चीज़ जा चुकी है तो हमारी कैट भी मर चुकी है। आई केप थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, कि वो कितनी प्यारी और शानदार लिटिल किटन थी मेरे साथ जब वो आई थी। इन द अर्ली मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठा, व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हाँ एंड गेट आउट ऑफ बेड, और मैं ये सब सोचने लगा कि वो सुबह सुबह
अर्ली मॉर्निंग वो आती थी, मुझे डिस्टर्ब करती थी, या फिर मैं उसे डिस्टर्ब करता था और मैं उसे अपने बेड से नीचे उतार देता था। शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, वो हमेशा मेरे पीछे घूमती रहती थी। क्लाइंब अप माई रॉब, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती थी। क्रॉल इनटू माय पॉकेट टू फॉल अस्लीप, और मेरे लैप में भी बैठ जाती थी सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसको बहुत मुश्किल से भुलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं उसे बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। इट वॉज ऑलवेज सीम्स दैट द बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, ये हमेशा कहा जाता है कि बुरी न्यूज़ जो है वो जल्दी से स्प्रेड होती है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, ये भी मेरे केस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, मेरी बुरी हालत के, प्लाइट यहाँ क्या होता है, द बैड कंडीशन। हर कोई जो हाई स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था सॉरी, वहाँ पर हर कोई जान गया था कि मेरी प्लाइट कंडीशन क्या है। मेरी टीचर, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे आसपास के फ्रेंड्स सब जान गए थे कि मेरे घर में क्या हुआ था। सो आई वर एम्ब्रेस्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहा था, एज इफ हाउ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज़ के। वॉट ए वे टू स्टार्ट ऑफ ए न्यू स्कूल, ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब कोई नया स्कूल स्टार्ट करने वाला हूँ। बट ये भी क्या अजीब बात थी। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैंने कुछ कर दिया हो। सो मैं इस तरीके का टेंशन मतलब उसे सीख नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल दिस थिंग्स राइट। सो द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल, अब अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव करने लगे देन माई यूजुअल। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर माई जिम क्लास एट माई लोवर, मैं अपनी जिम क्लास के लिए अपने लॉकर में गया। मैं अपने पैंट्स वगैरह लेने गया। पीपल वर मिलिंग अराउंड में, वो सारे के सारे जितने भी आसपास बच्चे थे वो मेरे आसपास आ गए और आस्क मी टू हरी अप, वो मुझे कहने लगे कि जल्दी करो। आई थॉट इट इज़ स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड हैव सरप्राइज मी। अब कुछ हफ्ते हो चुके हैं तो उस दौरान मुझे कोई चीज़ अब स्ट्रेंज ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि इससे बड़े बड़े चीज़ें मैं देख चुका हूँ अपनी लाइफ में। It almost seemed that they were trying to show me in the gym. And then I saw why. There was a big tablet set up with all kind of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me some school supplies, notebooks, all kind of things. देखिए, यहाँ उसे हेल्पिंग नेचर दिखाई देता है अपने फ्रेंड्स का और अपने आसपास के लोगों का। तो वो ये सोचते हैं कि उन्होंने उसकी कैसे हेल्प की, उसकी हेल्प कैसे की, राइट। सो वो कहते हैं कि भाई जैसे उन्होंने उसके जो फ्रेंड्स थे या आसपास के लोग थे, उन्होंने उसको एक जिम में अच्छे से बिहेव किया, एक बड़ी टैबलेट सेट दिया और मेरे लिए ही उन्होंने कलेक्शन किया रुपए का भी, प्लस स्कूल की सप्लाईज़ का, फॉर एग्जांपल नोटबुक्स और इस तरीके के क्लोथ्स, जीन्स टॉप्स, स्वीट सूट्स, इन सभी चीज़ों का उन्होंने इंतज़ाम किया। इट वॉज जस्ट लाइक ए क्रिसमस, ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिसमस हो। आई वॉज ओवरकम बाई माई इमोशंस, मैं अपने इमोशंस में और यू कैन से मैंने उन पर काबू पाया। सो पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी, जो लोग मुझसे कभी बातें नहीं करते थे पहले, दे वर जस्ट कमिंग बिफोर टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, वो मेरे पास आते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउस, मैं हमेशा ये सोचता था कि मेरा वहाँ कोई दोस्त होगा या नहीं होगा, बट नाउ आई गॉट पॉइंट कि वो मुझे अपने घर तक इन्वाइट कर रहे हैं, तो वो सब मेरे दोस्त ही हैं। देयर जेन्युइन आउट पोरिंग ऑफ कंसर्न, जो मेरे ऊपर जो उनका कंसर्न था वो बहुत ही अच्छा था और मैं बहुत खुश था इस चीज़ को लेकर, राइट। सो हियर रियली टच्ड, सॉरी हियर फॉर दैट, रियल टच्ड में ये सब बातें मुझे काफ़ी दिल को छू गई। एंड द इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीद ए साइन ऑफ साइन रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ब्रिंग गोइंग टू ओके आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। मुझे इस बात का रिलीफ बहुत ज़्यादा था कि फर्स्ट डे से लेकर आज तक में बहुत काफ़ी डिफरेंस था और मैंने आज अपने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं आज के दिन। और मंथ लेटर जब ये बात हो चुकी, हमारा घर जलने के 1 महीने के बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ड इट, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, आई वॉजंट अलोन। अब मैं अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा हूँ, ये अब के बाद थोड़ा डिफरेंट है, बट अब के बार क्या है, मैं अकेला नहीं हूँ। आई वॉज टू
विद 2 ऑफ माय न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। अब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, 2 न्यू फ्रेंड्स हैं वो स्कूल से, मैं उनके साथ हूँ। इट टूक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माय फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। अब जो ये मेरे दोस्त थे, इन्होंने मेरे लिए लाइफ में ऐसे फोकस को, ऐसी फीलिंग को जन्म दिया जो इनसिक्योरिटी से परे थी, यानी इनसिक्योरिटी से अलग कोई फीलिंग दी। और मुझे एक वंडरफुल फीलिंग भी मिली जो कि मेरे आसपास के लोगों के लिए एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रिबिल्ट व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। जैसे जैसे वो घर बन रहा था दोबारा, वैसे वैसे मेरी लाइफ भी दोबारा ही बन रही थी। तो हियर द हाउस, द रिबिल्डिंग ऑफ द हाउस वाज जस्ट कंपेयरिंग विद द रिबिल्डिंग ऑफ द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर नरेटर, राइट। सो हियर व्हेन वी सेट देयर ऑन द कर्ब, जब हम अपनी छत पर बैठे हुए थे, सो प्लानिंग माई न्यू बॉर्न बेडरूम, हम अपने न्यू बॉर्न बेडरूम में अपनी नई लाइफ की स्टार्टिंग के लिए प्लान कर रहे थे। आई हियर समवन वॉक अप टू मी बिहाइंड एंड से डज दिस बिलोंग टू यू। तभी मैं देखता हूँ कि कोई आता है और मुझसे कहता है कि ये तुम्हारी है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज़। तो वो लोग कहते हैं कि ये तुम्हारा है। तो जैसे ही मैंने उसको देखने के लिए पीछे में टर्न अप हुआ, मुझे अपने आप को विश्वास नहीं हुआ। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। वहाँ पर वो जो औरत थी जिसने मुझे पूछा था कि तुम्हारा है, तो उसने, उसके पास क्या था, उसके पास मेरी कैट थी, जिसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो कैट उसने अपने बाहों में भर रखी थी। आई हेल्ड हर मी एंड क्राई टू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फॉर्म। और मैं उसके पास जाकर मैंने उसको अपनी बाहों में भर लिया और उस ओल्ड वुमन का बहुत बहुत थैंक यू भी किया। और उसको, उसके जो ऑरेंज फर थे उसको मैंने फील किया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लगाव था उन दोनों में, और कहीं ना कहीं ये बॉन्ड ही था जो उन दोनों के रिलेशन को आज तक रख पाया। और अभी तक 1 महीने के बाद जब वो कैट उसको मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शी पर्ड हैप्पीली, वो मुझे देखकर भी खुश हो जाती है। माई फ्रेंड वॉज हगिंग मी, वो मेरे फ्रेंड जो है वो मुझे हग कर रहे हैं, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। और बहुत खुश हैं मेरे फ्रेंड्स भी मेरे कैट को से मिलने के लिए। और हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। सिर्फ एक हाउस ही बर्न नहीं हुआ है, हर एक चीज़ जो बर्न होकर एक नई बनी है वो भी एक नई पॉजिटिव एनर्जी है। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाय द फायर दैट शी रन ओवर अ माइल अवे। अपेरेंटली मेरी कैट जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी फायर से, वो कुछ मील दूरी जाकर भाग गई थी। हर कॉलर हैड आउट फ़ोन नंबर ऑन इट, मैंने उसके कॉलर पर एक नंबर लिख दिया था। बट और फ़ोन नंबर हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड। तो डिस्ट्रॉय हो गया था हमारा फ़ोन भी और डिसकनेक्ट भी हो गया था। दिस वंडरफुल वूमन टुक हर इन, जो औरत उसे मेरे पास लेकर आए, वो उसने बहुत मशक्क़त की उस कैट के रियल ओनर को ढूंढने की, जो हम थे। सो समहाउ शी न्यूज़ दिस कैट वाज लव्ड एंड सॉरली मिस्ड। तो कहीं ना कहीं उसे पता था कि ये लड़की जो कैट है वो उसको बहुत प्यार करते थे इसके ओनर, एंड वो उसको बहुत ही ज़्यादा मिस भी कर रहे होंगे, इसलिए उसने बहुत कोशिश की, 1 महीने तक उसे ढूंढा भी होगा। और finally they got their real owner. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, और हम अपने नए अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, अपना नया घर बनते हुए देख रहे हैं, और मेरी कैट जो है वो कर्ल अप करके मेरी लैप में बैठी हुई है। ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सिम्स टू बी डिमिनिश। मेरे कैट मिलने के बाद, दोस्त मिलने के बाद, तो हर एक चीज़ जो मेरे अंदर था कि मैं मर जाऊँ एंड ऑल दैट, तो वो हर चीज़ें डिमिनिश ख़त्म हो चुकी हैं। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड ऑफ फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज। तो ये कहता है कि मैं हर एक का ग्रेटिट्यूड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे नए दोस्तों का, उन स्ट्रेंजर्स लोगों का जो मुझे कभी नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की। और मैं अपने उस बिलव्ड कैट का, और जैसे ही मेरी कैट वापस आएगी मैं भी अपनी ज़िंदगी में रीयूनाइट हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू सी माई कैट come back to me. So here in this video is the end of the lesson. Here we come to know one thing that कि कभी भी जो घर है वो घर बनता है लोगों से, और जो एक मकान होता है, मकान बनता है सिर्फ 4 तरफ की बिल्डिंग से, 4 दीवारों से। सो एक हाउस जो कभी होम नहीं हो सकता। आप जहाँ रहो वो, अगर वहाँ पर आपके घर हैं
घर वाले हैं और आपके फ्रेंड्स हैं, हर एक चीज़ हैप्पीनेस से भरी हुई है, तो वही आपका होम हो जाता है। और यहाँ पर हमें एक पता चलती है कि उन्होंने फायर में अपना होम खोया ज़रूर था, लेकिन उसका रियल होम जो थी वो हैप्पीनेस थी, वो थे उसके आम जनता, जो जिसने उसकी हेल्प की, वो आम लोग, वो स्ट्रेंजर लोग जिसने उसकी हेल्प की, कि वो उसके लिए नए क्लोथ्स, एक नई ईव लेकर आए उसकी ज़िंदगी में। सो हमें यहाँ से सीख मिलती है कि हमें कभी भी जल्दी ही हार नहीं माननी चाहिए। चीज़ें जो हैं वो टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं। सो जो भी हमारी किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है, बट फिर भी हमें उसे हैंडल करना चाहिए। नाउ हियर इज़ द ग्लोसरी टॉकिंग ऑफ द फायर, दैट इज़ फीडिंग एंड टेंडिंग द फायर। ज़ॉम्बी, a dull and apathetic person. Surreal means strange and bizarre. And milling around means moving in an aimless manner. Show means push hard. The here some of the questions are given here, that what does the author notice one Sunday afternoon, एंड व्हाट इज़ हिज मदर रिएक्शन, व्हाट डज शी डू। आपको पता है संडे को उसकी मम्मा ने क्या किया था, उस दिन क्या हुआ था, फायर ब्रेक आउट हुआ था, उसकी मम्मा ने क्या क्या किया था, यू नो दैट। व्हाई डज शी ब्रेक आउट डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर, बिकॉज उसने अपनी कैट को खो दिया था, एवरीथिंग ही हैज़ लॉस्ट। वाई इज़ द ऑथर डीपली एम्ब्रेस द नेक्स्ट डे, वो इतना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस क्यों कर रहा था, बिकॉज उसने अपनी हर एक चीज़ खो दी थी, और वो एक टेनिस शूज़ पहन कर गया था, एक गंदी सी ड्रेस पहन कर गया था, जो वो बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं कर रहा था। सो ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चंस हैं विच यू हैव डन इन योर वेरी नोटबुक। आई होप दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू नाउ। टिल दिस you have to do. So I hope this has been clear to you now. Thank you for your time, and we will meet in the next video with the next lesson. Thank you so much.